Good morning, class 10th. Today we are going to start chapter number 1 in economics, that is development, and this is our revision class. In the last previous classes, I told about you the whole revision of 4 books. So we are now on economics. So the topic name is development. You basically call in Hindi Vikas. So what is the idea of development? How people is associate with themselves to development? What are their notions of development? What are their income source? What are their other aspects of income source? These are basically the points uh, behind the chapter. And one more thing, we also comparison countries and state according to their average income, that is per capita income. So how can we decide a country is a development or not? On the basis of average income, on the basis of GDP. So these are the factors. But after all, we have to clear in our mind that if people doesn't have their basic needs and people don't have their rights in an economic situation, then their development is not to be compared as a whole development of particular man in other country. Sometimes we can talk about, can life be better after all we have only an income source? No, people have to be a better opportunity to progress also. If I am a teacher and I have a salaried person, but if I have no chance to progress my career as a teaching, and I know, but I have not security of my job. So these are the basically another questions. uh, uh, I have to be respected by all the members of that particular institution, by the students. Everything is matters. So let's talk about development. uh, and please remind that on chapter 1 in economics, chapter 1 eco, chapter 1 geography, and chapter 1 to 3 history. These are already revised, and these all are clearly explained by me in previous classes. So if you have any problem, you go through the previous classes and attend once again and clear your queries. If then you are not you are not satisfied, then message me, call me after 1 p.m. So that is the time. But I already discussed you about the pattern of question paper, number of questions. Sorry, not number of questions. Actually, the whole paper is 40 marks. So I think I divided into 5 questions and their parts. But I already explained you about the level of question paper. Fill in the blanks, match the following. Answer in a single word or a one liner or one sentence type questions. These are the basically the pattern of questions and the level of exam. Not so hard, but as always I put up many questions between the topics. Okay, now start from the first paragraph. The idea of development in our और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. हम देखते हैं कि हाँ, कि जो विकास है उसका जो एक सोच है, एक समझ है, प्रोग्रेस रिलेट करती है, वो हमारे साथ हमेशा होती ही है. वी हैव एस्पायरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी डू लाइक टू लिव. ये हमारी एस्पायरेशंस मतलब उम्मीदें और इच्छाएं, डिज़ायर्स ही होती हैं कि हमें कोई चीज़ किस तरह से अच्छी लगती है और हम क्या चीज़ पसंद करते हैं अपनी डेली की लाइफ में, जिससे कि हम अच्छा जी सकें. वो अपनी अपनी एक समझ है.
सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट अ कंट्री शुड बी लाइक, और ठीक उसी तरह से वो आइडिया एक कंट्री के लिए रखे जाते हैं। जब एक पर्सन के लिए इंडिविजुअली कोई डेवलपमेंट एक टॉपिक होता है, ठीक वही टॉपिक एक कंट्री लेवल पे भी होता है फिर। ठीक है, आप इंडिया के बारे में अगर देखें तो आप देखेंगे कि हाँ, इंडिया में किस तरह का डेवलपमेंट है, उसकी इकोनॉमी किस तरह से बात की जाती है। तो वो मेरे कहने का मतलब है सेम उसी तरह से कंट्री के लिए होता है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब हमें चैप्टर के जो अंदरूनी टॉपिक्स हैं उनमें मिलेगा। क्या एसेंशियल थिंग्स हैं, क्या रिक्वायर्ड होती हैं सब चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए, लाइफ कैन बी बेटर फॉर ऑल। क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, क्या सबके लिए वो हो सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि कोई मज़दूर है और अगर उससे किसी की लिवलीहुड चल रही है, बट मज़दूर नहीं चाहता है कि मेरी वो सिचुएशन हमेशा एज इट इज़ बनी रहे, एज इट इज़, वो कभी नहीं चाहता। ठीक है, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कॉमन क्वेश्चन है। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, इक्वलिटी की जो बात है, डेवलपमेंट में इक्वलिटी की भी बात आती है, रिस्पेक्ट की भी बात आती है, जॉब सिक्योरिटी की भी बात आती है। सिर्फ क्या इनकम ही सब कुछ हो सकता है? नहीं, लोग अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे विच कैन वी वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो इन्हीं सब गोल्स को अचीव करने के बारे में ही डेवलपमेंट की पूरी एक समझ है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक रिक्शा चालक है, उसको दिखाया गया है कि एक रिक्शा के ऊपर वो कई सारी फैमिलीज़ का एक ना एक मतलब डायग्राम बना के उसको शो किया गया है, और नीचे कुछ लिखा हुआ है, वट मी दे कैन नॉट डेवलप, सॉरी विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप। मतलब वो इन इसके बिना ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती हैं। मतलब वो जो मज़दूर आदमी है, लेबर पर्सन हैं, या फोर्थ क्लास लोग हैं, तो वो उनके बगैर आप किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। अब वो अपने लिए भी तो क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये सब चीज़ें करते करते, इन लोग के लिए काम करते करते मेरा डेवलपमेंट कहाँ है? तो वो एक बात आई थी ना अभी, जिसमें आपने देखा था कि जो सबके लिए डेवलपमेंट है, क्या उसमें सब इक्वली बैठते हैं फिट? क्या सबके लिए बराबरी में वास्तव में बात होती है कि सबके लिए डेवलपमेंट? तो इस पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट कहाँ है जो इन लोगों का है? जिस पर्सन ने कभी अभी राम मंदिर बनने वाला है, ठीक है, लेटर ऑन कुछ भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि राम मंदिर है, मतलब कोई भी नई चीज़ है, पुरानी चीज़ों को ले लीजिए, क्या उन सब चीज़ों के बनने से जो पुअर पर्सन है उनकी जो मतलब क्या एक वर्ड यूज़ हुआ था 9th क्लास में, वनरेबिलिटी, असुरक्षा, क्या वो दूर हो जाती है उस पुअर पर्सन की? मेरा सवाल सिर्फ उतना है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें एक तरह से नहीं हो सकती, इक्वली नहीं है, या कहें इकोनॉमिकली भी एक जैसी नहीं है। So basically these are the questions and you will learn more about this issue greater depth in higher classes. हमें सिर्फ यहाँ नॉर्मली उसको समझना है, और इसमें इतना ही है। एक फ्रेम दिया था जो लेटर ऑन नेक्स्ट पेज है, वहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग अच्छे से है, और बस उसमें छोटा सा ग्राफ दिया है कि आज जो हम जी रहे हैं वो हमारा पीछे से, पास से इन्फ्लुएंस्ड ही है। अगर कोई गरीब पर्सन है, उसने गरीबी को देखा है, मेहनत की, आगे बढ़ा है, तो भविष्य में जाके कभी भी वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वेस्ट नहीं करना चाहेगा, फालतू का एक्सपेंस कभी नहीं करेगा। तो और किसी ने अगर किया है तो वो उसका प्रेजेंट शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारी चीज़ें कई बार इन्फ्लुएंस पास से ही होती हैं। इंडिया एक गरीब कंट्री था 1947, लेकिन अगर आप 2020 की बात करें, हालांकि हम बहुत अमीर तो नहीं हो गए, लेकिन हमने अपनी सिचुएशंस को सुधारा, आगे बढ़े। ओके, वी कांट डिज़ायर फॉर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। तो इन सब चीज़ों के बगैर, हम अवेयर होए बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम चेंज हों। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिकली प्रोसेस को कई सारी उम्मीदें रखते हैं कि रियल लाइफ में आपकी वो पॉसिबिलिटीज़ हों कि आपको वो मिले। जैसे गवर्नमेंट विकास की बात करती है, देश की मजबूती की बात करती है, आपके लिए रोज़गार की बात करती है, वो ये सारी उम्मीदें और ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है पूरा चलता है, क्योंकि इंडिया उसी सिस्टम का एक हिस्सा है।
यस, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस विद डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन एक बार रीडिंग करें और इस क्लास को अच्छे से लें, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे क्वेश्चन में ही बोला है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, मतलब विकास क्या वायदे करता है हमसे। डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल हैं। जैसे एक छोटा सा डायग्राम है, आप सिर्फ इसको समझ लें तो शायद आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप अच्छे से समझें कैसे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल है। वो ये कहता है, यू वांट अ कार, तुम्हें गाड़ी चाहिए, ये इससे कह रहा है। द वे आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज माई मे बी टू वन डे ओ द रिक्शा यू पुल। वो ये कहते हैं कि हम अपनी कंट्री में जैसे रह रहे हैं ना, ये इस तरह से जो सेटअप है, तो उम्मीद कर सकते हो, लेकिन एक दिन तुम्हें रिक्शा ही खींचना है। तो ऐसा उसने क्यों बोला, कभी आपने सोचा है? यानी कि इस पीपल के पर्सन गोल अलग है, इसके अपने अलग है। कार खरीद सकते हो ठीक है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा, मतलब तो उम्मीद करो कि फिर तुम्हें एक दिन रिक्शा भी मिल जाए खींचने के लिए। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि कोई पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको अगर रिक्शा खींचने की हैसियत नहीं है, तो वो गाड़ी के बारे में क्यों सोचे, कार के बारे में क्यों सोचे। और ठीक जिस अगर कार ले भी लो, तो मे बी तुम इतना उसको अफोर्ड ना कर पाओ कि एक दिन तुम्हें उसकी सारी चीज़ें खींचने के लिए, उसका लोन या चीज़ें चलाने के लिए तुम्हें रिक्शा चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से ही पैसे कमाओगे, पैसे से ही फ्यूल खरीद सकते हो, वगैरह वगैरह। यानी एक के लिए अगर डेवलपमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी घर गाड़ी हो तो बहुत डेवलप है इंसान। आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। तो डेवलपमेंट के सब के लिए मायने अलग अलग हैं, डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल है। मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में डायग्राम्स और पैराग्राफ समझाने के बाद टेबल से बताई गई हैं, वो बहुत अच्छा है। इस चैप्टर की खासियत ये है, जैसे ये टॉपिक था डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अगर आप सोचें, अगर आप इस टेबल को बेटा ध्यान से देखें, आप कैटेगरीज में जो पर्सन डिवाइड है उसको देखें, और उसके लिए उसकी उम्मीदें या डेवलपमेंट गोल क्या हैं ज़रा वो देखें। तो आप ये जो लेटर ऑन ये है ना, इनको आप फिल करके देखना, आपकी एक एक कहते हैं ना, माइंड मैप बनता है। यानी कि कुछ चीज़ें जब आप खुद से करते हैं और कुछ चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, आप माइंड मैप बनेगा कि वो कैटेगरीज पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, तो ज़रा पहला देखें आप, लैंडलेस रूरल लेबरर्स। आप देखते हैं जो भूमिहीन मजदूर होते हैं, देखा होगा, शहरों में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बड़े बड़े गाँव में, वरना बहुतों के पास छोटे छोटे टुकड़े खेती के होते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव डेवलपमेंट गोल एंड एस्पिरेशंस फॉर डेवलपमेंट। तो वो बेचारा क्या चाहता है, उसका क्या होगा, वो चाहता है कि उसे बहुत दिन का काम मिले बेहतर मजदूरी के साथ। उसका बेचारे का यही गोल होगा। उसे उसे लगता है कि लोकल स्कूल में एक क्वालिटी थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाए उसके बच्चों के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उसके साथ ना सोशली भेदभाव ना हो बेचारे के साथ, जो कि हमारे यहाँ बहुत होता है। हम तरीके से बात तक नहीं करते। आप उस भेदभाव को कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, उसका एक जो बैकग्राउंड है उस लेवल से भी कैसे भी कर सकते हैं। वो चाहता है उसके साथ ही भेदभाव ना हो। और टू कैन बिकेम लीडर इन द विलेज, ये ना उसकी इच्छा नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि उसकी इच्छा है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में उसको बराबरी का हक है। जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है, तो एक मज़दूर का बेटा, जैसे आप देखते होंगे पेट्रोल पंप में काम करते थे, प्रदीप सिंह जो इंदौर से आईएएस बने, इस बार 93 रैंक है उनकी, ये 2019 में है इंदौर के। वो कहते हैं उनके फादर पेट्रोल पंप पे काम करते, तो उसका बेटा तो बन सकता है ना। हालांकि वो थोड़ा सा इससे ऊपर की कहानी है, लेकिन आप एक कोशिश करके देखिए समझने की कि बिकम अ लीडर इन द विलेज का मतलब है कि वो भी पंचायत ऐसे कुछ छोटे छोटे, जो उसके हिसाब से बहुत बड़ी बात है गांव लेवल पे, वो पॉलिटिकली भी इक्वलिटी चाहता है। यानी मेरा भी हक है लड़ने का। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस, दिस इज बेटर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पर्सनस एंड कैटेगरीज। ठीक है, अब आप ज़रा इसके ऊपर सेकंड पॉइंट पे आए। एक बहुत
समृद्धशाली फार्मर है पंजाब से। हर कैटेगरी के इंसान की बात कीजिए, आप जैसे गर्ल हैं, बॉय हैं 10th क्लास में, आप अपने आप को लेकर अगर बात करें, पैसे से लेकर बात करें, करियर को लेकर बात करें, आप सबकी चीज़ें अलग होंगी। तो इसको देखें, ये चाहता है कि एक हाई फैमिली इनकम हो, और जो सपोर्ट प्राइस है क्रॉप्स का, आप समझ रहे हैं ना, सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का, वो मिलता रहे हार्ड वर्क और चीप लेबर के जरिए, क्योंकि भाई वो अमीर किसान तो पहली बात तो उतना मेहनत नहीं करेगा जितना वो मज़दूरों से करवाएगा। फिर चाहता है कि दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो पंजाब का किसान ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को ना विदेश सेटल कर दे, यहाँ वो नहीं रखना चाहता। तो उसके एक प्रॉस्पेरस जो फार्मर है उसके गोल कुछ अलग हुए। सिंपल है ना। आप कोशिश करें कि आप इन तीनों को एक बार फिल करें। अगर आपने कोशिश की इन तीनों को फिल करने की, आपने एक लेबर के माइंड के पर्सन को देखा, एक प्रॉस्पर किसान के माइंड को देखा और उसकी सोच और गोल्स को देखा, कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के लोगों के बीच में रह के, शायद इनमें से आपका भी कोई एग्जाम्पल हो या आपके आसपास का एग्जाम्पल, तो आप कोशिश करें कि वो बेसिकली उसे किस चीज़ों का गोल रहता है, क्या अचीव करना चाहता है, उसके लिए विकास क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको एक परफेक्ट आंसर मिला। एक गर्ल है जो रिच अर्बन फैमिली में है, उसका दिया हुआ है, कहता है कि उसको भी उतनी फ्रीडम मिले जितने कि उसके भाई को, और वो डिसाइड कर सके वो लाइफ में क्या करना चाहती है, और वो अपनी विदेश में रह के पढ़ाई कर सके। ऐसे बहुत सारी, ऐसे आदिवासी विलेज के लिए पूछा है। तो ये प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप उसको ना बुक में ही लिख सकें, 3 पॉइंट तो लिखें वो क्या चाहता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपको इस चैप्टर की जो शुरुआत की बिगिनिंग है ना, डिफरेंट गोल एंड डिफरेंट पीपल, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया ना, तो लेटर ऑन जितने आगे टॉपिक आएंगे वो आपको बहुत जल्दी क्लियरली समझ में आएंगे। पैराग्राफ्स भी हैं और टेबल भी दिए हुए हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जाने के बाद आप यहाँ पूरा ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ और लास्ट उसमें वो टेबल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गर्ल उम्मीद करती है कि उसको फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके भाई को मिलती है, और वो अपना घर का काम भी बांट सके, उसकी कोई हेल्प कर दे जो कि ब्रदर लाइक नहीं करता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा करें, मुनाफा पैदा करें, तो उसके लिए वो डैम बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे तो जो लैंड होगी और लाइफ ऑफ पीपल की होगी, ट्राइबल्स की, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें आप किसको गलत कहेंगे? यानी उसका उद्देश्य है कि मैं मुनाफा कमाऊँ, लेकिन इन बेचारों क्या, इन ट्राइबल पीपल्स का क्या, उनके गाँव का क्या, उनकी ज़मीन का क्या? अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि जब डैम बनते हैं, डैम की ऊंचाई बढ़ती है तो आसपास के बहुत सारे गांव खाली करने पड़ते हैं, क्योंकि उसका एरिया बढ़ाया जाता है, वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, तो पानी स्टोरेज की क्षमता बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, चीज़ें मर्ज की जाएंगी, वहाँ से हटाई जाएंगी। तो दीज आर देयर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। गाँव वाले नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़मीन छीने, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि बिजली बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से ले लूँ ज़मीन। आप फैसला करें, अब आप सोचें इस चीज़ को। तो एक जो पहला पॉइंट निकल के आता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल में, वो ये निकल के आता है, आप ध्यान से इसको समझें, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग पीपल्स के अलग गोल होते हैं। एंड टू, सॉरी पहला ये था, दूसरा यहाँ से है, विच में डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अगर वो एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं वो डेवलपमेंट हो। जैसे जैसे आपने देखा कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी चाहता है तो वो ज़्यादा डैम बनाना चाहता है, लेकिन वो ट्राइबल पीपल्स का क्या, वो तो बेचारे ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। तो दैट इज़ द पॉइंट, वट मे बी डेवलपमेंट वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये रीज़न है। हम हर चीज़ को सिर्फ इसलिए नोटिस नहीं कर सकते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं, आपको ये भी देखना होता है कि उस चीज़ से दूसरे चीज़ों पे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, उसकी लिवलीहुड ही तो नहीं जा रही है। जैसे एक कार्टून के जरिए दिखाने की कोशिश की है, एक कार में बैठा आदमी है, वो गाली देते हुए जा रहा है, कह रहा है दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। ऐसे लोग बेचारे डेवलप नहीं होना चाहते हैं। हालांकि वो बेचारा नहीं कह रहा है, ये एक तरह से टॉन्ट मार रहा है। भाई ये डेवलपमेंट क्यों नहीं चाहते हैं? आपने बिना देखे सोचे समझे उसको कैसे बोल दिया कि डेवलपमेंट नहीं चाहता? क्या पता वो इसी तरह से कहीं से डिस्प्लेस्ड पर्सन हो, कहीं से आया हो, अब वो गरीबी की हालत में जी रहा है, उसे मुआवजे का पैसा ना मिला हो।
और इन्होंने पैसे चमका दिए अपने। सो डोंट बी जज क्विकली। फिर एक जो बहुत अच्छा टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मैं पॉइंट्स में हिसाब से बात करूं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि लोग ना इनकम चाहने के साथ साथ और भी चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं और रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये इतने सारे गोल्स हैं उनके कि आप वो जैसे मान लीजिए आप लड़की हैं, ठीक है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको आई टीजिंग ना हो, कोई आपको आंखें फाड़ के देखे नहीं, इज्जत की नज़र से देखे, लोग आपका रिस्पेक्ट करें, और आपके वर्क के लिए कोई आपको टॉन्ट ना करे, क्रिटिसाइज़ ना करे, आपके कपड़ों को लेके बेवजह कोई भद्दे कमेंट ना करे, लड़कियों को कमज़ोर होने की बात ना करे। आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना चाहते कि नहीं मैं तो पैसा कमा लूँगी, लोग कुछ भी कहते रहे। ये अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, ये उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। कि आप कॉमन ये होता है कि हम रेगुलर वर्क करते हैं, बेटर वेजेस चाहते हैं, डिसेंट प्राइस भी चाहते हैं क्रॉप्स का वगैरह वगैरह, लेकिन जो बाकी चीज़ें चाहते हैं वो ये है। आप ट्रीटमेंट चाहते हैं इक्वलिटी वाला, आप फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, इज्जत भी चाहते हैं, द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ठीक है। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट गोल्स, और यही वो सारी चीज़ें हैं जो अदर इम्पॉर्टेंट गोल में आती हैं। इनफैक्ट सम केसेस दिस में मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन। कई बार ये जो सारी चीज़ें हैं वो मोर इनकम से कहीं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, कहते हैं ना मोर कंजम्पशन, यानी कि आप किसी के घर खाना खाने गए और आपको उस किसी ने बहुत सम्मान दिया और आपको आपके खाने पहनावे के लिए कुछ कमेंट करने लगे, तो आप ये चाहेंगे यार देख तू खिला तो मत, खिला भले ही मुझे कम, बट मुझे ना रिस्पेक्ट दे यार, रिस्पेक्ट मेरे को बहुत। वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। सो बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट दे नीड टू लिव, क्योंकि मटेरियल गुड्स के जरिए ही सिर्फ और सिर्फ लाइफ नहीं जी जा सकती है। लाइफ को जीने के लिए सम्मान भी चाहिए, एक खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। अगर वो कोई खो दे तो मे बी वो, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं गलती करने की वजह से, जॉब लॉस होने की वजह से। आप देखो रिसेंटली इस कोरोना टाइम में कितने सारे लोगों ने जॉब खोया है और आत्महत्या की है, बहुत से लोग हैं। सो बेसिकली मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, इट इज़ वन अदर फैक्टर ऑन विच अपॉन लाइफ डिपेंड। मतलब मनी जो है एक हमारा एक अदर मटेरियल थिंग्स में अगर आप ऐड करें तो आप कुछ चीज़ों को उससे ख़रीद सकते हैं, एक फैक्टर है जिससे आपकी लाइफ एक टिकी हुई है। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो ये वाली हैं, इक्वलिटी, ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सब, ये सारी बहुत एसेंशियल है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द मोरल थिंग्स। ओके, इट इज़ नॉट ऑब्वियस यू टू देन जस्ट थिंक ऑफ द पोल ऑफ अ फ्रेंड ऑन योर लाइफ, सॉरी रोल ऑफ योर लाइफ। इसीलिए आप अपने दोस्तों की एक रोल समझते हैं लाइफ में। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आप इच्छा जताते हैं कि उनसे उनकी दोस्ती या आपकी दोस्ती बनी रहे। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन लॉट ऑफ आवर लाइफ। कुछ चीज़ें हम आसानी से मेज़र नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, नाप नहीं सकते, उसे तौल नहीं सकते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मायने रखती हैं। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और हम उन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अच्छी दोस्ती, बेहतरीन दोस्ती, कम इस तरह से होना, कम खर्चीला होना, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ की बात की जाती है अक्सर कर, वो पैसों से नहीं बात की जाती। अगर किसी की शादी होती है मान लीजिए, ठीक है, और शादी में वो सिर्फ मनी मनी ही की इच्छा ज़्यादा रखे, तो वो शादी बहुत दिनों तक चलेगी ही नहीं, क्योंकि आपने पैसों के लिए सौदा किया है। आपने उस पर्सन से तो प्यार किया ही नहीं, लड़की ने लड़के को या लड़के ने लड़की को, जिसके लिए वो शादी से बंधे। दैट इज़ द पॉइंट, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक जगह दी है और ये नर्मदा रेजिंग सॉरी सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। वहाँ पे उसकी जो ऊंचाई है बढ़ाने के लिए यहाँ मीटिंग हो रही है, साइड से लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये आता है कि सारी चीज़ें मिक्सड अप हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इनकम ही ना हो, उसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो भी आप उनको गोल की तरह देखते हैं। तो वो कहा जाता है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। ये एक तरह से क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो
फॉर डेवलपमेंट, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से, पीपल लुक्स अ मिक्स ऑफ गोल, एक्सप्लेन इट। तो आंसर में आप वही पॉइंट्स लिखेंगे जो ऊपर अभी आपको समझाया, और यहाँ पे वो फिर आएंगी चीज़ें। कौन कौन सी, ज़रा देखें तो। वो ये चाहता है, अगर आप एक बहुत दूर वाली जगह पे मतलब जॉब कर रहे हैं, आप अपना दूर हैं घर से, तो आप वो एक्सेप्ट करने से पहले कुछ अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे। क्या हो सकता है, इनकम के अलावा आप ये देखेंगे आपकी फैमिली को फैसिलिटी मिल रही है, मतलब रहने की व्यवस्था, इस तरह की चीज़ें अगर मिल भी रहा है तो बहुत कॉस्टली ना हो, कॉस्टली भी हो तो चलो साफ़ सफाई की जगह हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, अपॉर्चुनिटी हो कि मैं सीख के आगे बढ़ सकूं। और दूसरा, आप चीज़ें बहुत सारी जगह से ये भी देखना चाहते हैं क्या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा तो नहीं कई दिनों के बाद मैं ऑफ कर दिया जाऊँ वहाँ से। हर कोई इस चीज़ को देखता है। दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और ये जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपके सिक्योरिटी के सेंस को बढ़ावा देता है। वो दिखाता है कि हाँ, अब जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो अब मैच कर रहा है, क्योंकि आपको आपकी जो बढ़ावे वाली चीज़ें हैं वो भी मिल रही हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, भले ही आपको हाई पे ना मिले, बट जॉब सिक्योरिटी हो, टाइम से अपनी फैमिली को भी टाइम दें, ये सारी चीज़ें आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम को घटा भी सकती हैं अगर हाई इनकम ही रखा तो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसीलिए बोला है कि लाइफ फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट मिक्स गोल। हर तरह से वो अपने गोल को उसमें अटैच करके देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें एक हाउस होल्ड का एग्ज़ाम्पल दिया है। सोसाइटी में उनकी डिग्निटी जो है बहुत मतलब मानी जाती है, भले ही हम उनको पे नहीं करते हैं, आपकी दादी हो, आपकी माँ हो, बट आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो उनके भी अपने अपने गोल हैं कि मुझसे कोई कुछ कहे नहीं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी आप हमें रिस्पेक्ट ना दें। ये छोटा छोटा सा एक और अनदर एग्जांपल है। सो बेसिकली दिस इज़ द टॉपिक, और यहाँ से कुछ थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। ये वही हैं जो अभी आपने मेंशन अबव जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा है। लेटर हम नेशनल लाइफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हालांकि ये भी बहुत हार्ड नहीं है, ये ठीक वैसी ही है जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा है। इसको कंट्री लेवल पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे कहूँ, सॉरी वो अब हम बाद में करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है। कोशिश करें कि जो ये एक्सरसाइज है आपकी, लेट्स दिस वर्कआउट, आप इसको करें घर पे, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें। मैं बार बार एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने कर लिया है नो प्रॉब्लम, जिन्होंने नहीं किया है देन डू इट। ये सब आप टाइम से करते चले जाएं, आपके लिए अच्छा होगा, आपका वर्क चेक होगा भी, और आप अपने पास वो वर्क करके रखें और मुझे सेंड भी करें। मैं बात अगेन 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 दोहराता जा रहा हूँ। लास्ट सैटरडे को शिकायत आई थी कि बच्चे को क्लास समझ में नहीं आ रहा है, और 4-5 महीने से ना तो उनके गार्जियन ने कांटेक्ट किया और ना ही बच्चे ने। तो फिर ये मुझे ये बताइए कि मैं सॉल्यूशन कैसे करूँगा। आप और उस बच्चे ने क्लास भी अटेंड नहीं की थी, यहाँ तक कि जो फ्राइडे क्लास थी और सैटरडे को बात हुई तो फ्राइडे क्लास उन्हें अटेंड नहीं की। उसे कैसे समझ में आएगा, वो आज तक कभी किसी ने अटेंड क्लास की ही नहीं, क्योंकि हाथ में मोबाइल होने के बाद भी कोई चीज़ें टाइम से नहीं हो रही हैं। तो उसमें किसका फॉल्ट है किसका नहीं है, ये भी ध्यान रखें। सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टीचर की नहीं हो सकती है। टीचर आपकी हेल्प के लिए है, अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए है, बट अगर आप अपनी खुद की हेल्प भी नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड फॉर टुडे, और जो कहा है उसको ध्यान रखें। थैंक यू क्लास।